جب تیسری رات ہوئی تو دنیا زاد نے اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن، تو اپنی وہ کہانی سنا جس کا ذکر تم نے پچھلی رات کیا تھا، اور اگر تو بھول نہ گئی ہو تو وہ تیسرا بوڑھا جس کے ساتھ ایک خچر تھا، اس کا قصہ کیا ہوا اور دیو اور سوداگر کے درمیان کیا معاملہ گزرا۔ اس نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ جب پہلے دو بوڑھے اپنا اپنا قصہ بیان کر چکے اور دیو نے اس سوداگر کا 2/3 خون معاف کر دیا تو تیسرا خچر والا بوڑھا آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور اسے سن کر مجھے یقین ہے کہ تو اس کا باقی کا خون اور گناہ بھی بخش دے گا۔ دیو نے کہا کہ بہت خوب۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اے دیو کے بادشاہ اور جنات کے سردار، یہ خچر میری بیوی ہے اور یہ ایک جادوگرنی ہے۔ اس نے جادو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تاکہ یہ میرے رتبے اور میرے مال کو اپنے ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے۔ میں اسے اس کام سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا کیونکہ مجھے جادو اور اس کا استعمال سخت ناپسند ہے۔ ایک دفعہ میں شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا اور گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ اور میرا ایک حبشی غلام جادو کا عمل کر رہے ہیں۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پانی بھرا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی صورت بدل کر کتے کی صورت بن جا۔ میں فوراً کتا بن گیا اور میں اس کا ارادہ سمجھ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بہت دن میں بھوکا پیاسا رہا۔ ایک دن میں ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا کہ میں ہر روز وہاں جاتا اور ہڈیاں کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا۔ ایک دن جب میں قصاب کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنی دکان بند کر چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب قصاب کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ ابا، تو ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے آیا ہے۔ باپ نے کہا کہ غیر مرد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے اور میں اسے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب باپ نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بیٹی، پھر تو اس سے جلدی سے اچھا کر دے۔ لڑکی نے ایک پانی بھرا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دیا اور کہا کہ اس شکل کو تبدیل کر کے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ میں پھر اصلی صورت میں آ گیا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر بھی جادو کر جس طرح اس نے مجھ پر جادو کیا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ کتنا برا کام ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی اس پر چھڑک دینا اور اس وقت تم جس بھی جانور کا نام لوگے وہ وہی بن جائے گی۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو سوتا پایا اور اس پر وہ پانی چھڑک دیا اور کہا کہ اپنی صورت بدل کر خچر کی صورت بن جا، اور وہ فوراً خچر بن گئی، اور یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اے بادشاہ اور جنوں کے سرتاج۔ اس نے خچر سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا، یعنی جی ہاں، یہ ہے میرا قصہ۔ جب وہ بیان کر چکا تو دیو نے اس سوداگر کا بقیہ خون بھی بخش دیا۔ سوداگر ان تینوں بوڑھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی لمبی زندگی اور سلامتی کی دعا کی۔ لیکن یہ کہانی اس ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ دلچسپ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ شہرزاد نے کہا کہ ایک ماہی گیر جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ بہت غریب تھا، اس کا دستور تھا کہ وہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھونٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوطی سے باندھ دیا۔
फिर उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में गोता मारा और जाल के आसपास चक्कर लगाया और उसको निकाल कर छोड़ा। वो बहुत खुश हुआ और पानी से बाहर आया और अपने कपड़े पहने, लेकिन जब जाल के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि इसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जाल फट गया है। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और कहने लगा कि ये रोजी भी अनोखी रोजी है, एक मछली पकड़ता है और दूसरा इसको खाता है। इसके बाद इसने दिल में कहा कि उठ, इसमें ही कोई भलाई होगी। ये कहकर उसने गधे को जाल से निकाला और जाल को निचोड़ा। जब इसे निचोड़ चुका तो इसे फिर फैलाया और समंदर में गोता मारा और खुदा का नाम लेकर जाल फेंका और इंतजार किया, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गया और भारी पड़ गया और पहले से ज्यादा फंस गया। वो समझा कि मछली है। उसने जाल को बांध दिया और कपड़े उतारे और पानी में उतरा और गोता लगाया, यहाँ तक कि इसको खुश्की पर लाकर छोड़ा। उसने देखा कि इसमें एक बड़ा मटका आया है और इसमें रेत और मिट्टी भरी हुई है। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ। उसने वो मटका फेंक दिया और जाल को निचोड़ा और इसे साफ किया और खुदा से मदद चाही और तीसरी बार समंदर की तरफ गया और जाल फेंका और इंतजार में बैठ गया। जब जाल बैठ गया तो इसने इसे खींचा और देखा कि इसमें ठीकरियां और शीशे के टुकड़े और हड्डियां आई हैं। इस पर इसे बड़ा गुस्सा आया और उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि खुदावंद, तू जानता है कि मैं अपना जाल किसी रोज 4 बार से ज्यादा नहीं डालता। आज 3 बार तो डाल चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। अब इस बार तू मेरे लिए रोजी भेज। उसने खुदा का नाम लेकर समंदर में जाल फेंका और बैठा इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गया। उसने उसे खींचना चाहा लेकिन वो न खींचा, क्योंकि वह गहराई में फंस गया था। खुदा का नाम लेकर उसने अपने कपड़े उतारे और गोता मारा और कोशिश करते करते इसे खुश्की पर ले आया। अब जब उसने जाल खोला तो इसमें से एक भरी हुई पीतल की लुटिया निकली, जिसके शीशे पर इसमें आजम की मोहर लगी हुई थी। माहीगीर इसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं इसे पीतल वालों के बाजार में ले जाकर बेचूंगा। जब उसने लुटिया को हिलाया तो भारी मालूम हुई और वो चारों तरफ से बंद थी। उसने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि इस लुटिया में है क्या, इसके बाद इसे बेचने के लिए ले जाऊंगा। उसे छुरी निकाली और शीशे पर मारने लगा, यहाँ तक कि इसे लुटिया से अलग करके एक तरफ फेंक दिया और इस लुटिया को हिलाने लगा ताकि इसमें जो कुछ हो बाहर निकल आए। लेकिन जब इसमें से कुछ न निकला तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो अभी ये सोच ही रहा था कि इस लुटिया में से धुआं सा निकलता नजर आया, जो पहले आसमान की तरफ उठता और फिर जमीन पर चला जाता। जब सब का सब धुआं निकल चुका और यकजा हुआ और इसमें हरकत पैदा हुई तो वो एक जिन बन गया, जिसका सर बादलों में था और पांव जमीन में धंसे हुए थे। जब माहीगीर ने इस जिन को देखा तो इसके पट्टे थरथराने और दांत बजने लगे और थूक खुश्क हो गया और इसे अपने आगे कुछ दिखाई न देता था। जब जिन ने उसे देखा तो कहने लगा कि ऐ नेक बुजुर्ग, मुझे कत्ल मत कर। अब मैं किसी बात में तेरी मुखालफत नहीं करूंगा और तेरे सारे हुक्म बजा लाऊंगा। माहीगीर ने उससे कहा कि ऐ खबीस, तू किसको बुजुर्ग कह रहा है? यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं है। बता तो सही तेरा किस्सा क्या है और तू इस लुटिया में क्यों कर आया है? जब इस खबीस ने माहीगीर की बातें सुनी तो फलक शगाफ कहका लगाया। ऐसे मालूम होता था कि जैसे बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। और वो माहीगीर से कहने लगा कि ऐ माहीगीर, मैं तुझे एक खबर सुनाता हूँ। माहीगीर ने कहा कि वो क्या खबर है? उसने जवाब दिया कि मैं तुझे अभी बुरी से बुरी मौत मारूंगा। माहीगीर ने कहा कि ऐ जिन्नों के सरदार, ऐ मरदूद, इस खबर के बदले खुदा तुझे जलील करे। मैंने कौन सी ऐसी बात की है कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है? मैंने तो तुझे लुटिया से निकाला है और तुझे समंदर की गहराई से छुटकारा दिया है और तुझे लेकर खुश्की पर आया हूँ। जिन ने कहा कि बस, अगर तुझे कुछ कहना है तो ये कह कि तू कौन सी मौत मरना और किस तरह कत्ल होना चाहता है। माहीगीर ने कहा कि आखिर तू मुझे किस गुनाह की सजा देना चाहता है? जिन ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि ऐ माहीगीर, मैं चाहता हूँ कि मारने से पहले तुझे अपना किस्सा सुनाऊं कि मैं इस लुटिया में कैसे और क्यों कर आया। माहीगीर ने कहा कि अच्छा सुना, मगर इख्तिसार के साथ, क्योंकि मेरी जान मुंह को आ रही है। उसने कहा कि माहीगीर सुन, मेरा शुमार नाफरमा बरदार जिन्नात में से होता है। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग की नाफरमानी की थी। इस पर उन्होंने अपने एक मुरीद को मेरे पास भेजा और वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए और मुझे बावजूद मेरे गरूर के जलील किया और मुझे अपने सामने खड़ा रखा। जब इस बुजुर्ग ने अपने मुरीद के पास मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे खुदा की पनाह मांगी और कहा कि ईमान ला।
जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने एक लुटिया मंगवाई और मुझे इसमें बंद कर दिया और लुटिया का मुंह शीशे से बंद करके इस पर इसमें आजम की मोहर लगा दी और जिन्नात को हुक्म दिया कि मुझे समंदर के बीचों बीच डाल दें। वहाँ 100 बरस तक मैं अपने दिल में कहता रहा कि जो कोई मुझे निकालेगा इसको मैं हमेशा के लिए अमीर बना दूंगा। ये 100 बरस गुजर गए और किसी ने मुझे ना निकाला। जब दूसरी सदी आई तो मैंने कहा कि अब जो कोई मुझे निकालेगा इसके लिए मैं दुनिया के खजाने खोल दूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इसी तरह और 400 साल गुजर गए। फिर मैंने कहा कि जो कोई अब मुझे निकालेगा इसकी 3 हाजतें पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इस पर मैं निहायत गज़बनाक हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि अगर अब किसी ने मुझे निकाला तो मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन इसे इख्तियार दूंगा कि ये बताए कि कौन सी मौत मरना चाहता है। और अब देख, अब तूने मुझे निकाला है, मांग कि तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर ने जिन की बातें सुनी तो इसने कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तुझे निकाला भी तो इन दिनों में। फिर माहीगीर ने कहा कि मेरे कत्ल से बाज आ जा, खुदा तेरे कत्ल से बाज आएगा और मुझे न मार, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझ पर कोई कातिल मुसल्लत कर दे। इस खबीस ने कहा कि मैं तुझे मारे बगैर न छोड़ूंगा। हाँ, ये मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर को मौत का यकीन हो गया तो वो जिन की तरफ मुखातब होकर कहने लगा कि इस एहसान की बिना पर मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे रिहाई दी। जिन ने कहा कि इसी रिहाई देने की वजह से तो मैं तुझे कत्ल कर रहा हूँ। माहीगीर ने कहा कि ऐ देवों के सिरदार, ये अच्छी बात रही कि मैं तुझसे भलाई करूँ और तू इसका बदला मुझे बुराई से दे। जब जिन ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस अब ज्यादा बक बक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं। माहीगीर अपने दिल में सोचने लगा कि ये जिन है और मैं इंसान, खुदा ने मुझे पूरी समझ दी है। मैं भी तरकीब और समझदारी से इसके मारने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह के वो मकर और बदजाती से मुझे कत्ल करना चाहता है। उसने जिन से कहा कि क्या तू मुझे मार कर ही छोड़ेगा? उसने कहा कि हाँ। माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे इसमें आज़म की कसम देता हूँ कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। उसने कहा कि अच्छा, मगर जूं ही उसने इसमें आज़म का जिक्र सुना तो वो परेशान होकर कांपने लगा और कहा कि पूछ। माहीगीर ने कहा कि क्या तू इसी लुटिया के अंदर था, हालांकि इसके अंदर ना तो तेरा हाथ समा सकता है और ना पाँव, तो तू सारे का सारा अंदर कैसे आ गया? जिन ने कहा, क्या तुझे यकीन नहीं आता कि मैं इसके अंदर था? माहीगीर ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं तेरी बात हरगिज नहीं मान सकता। यहाँ तक कहने के बाद शहरजाद ने देखा कि सुबह हो रही है और इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।